lecture is about Addison's disease and Cohen syndrome, right? Okay, so sorry, the system is a bit slow today. You have to be patient. Right, so Addison's disease and Cohen syndrome, they are related to uh, one of the organ of our body, which is called adrenal gland. So it's an endocrine gland, and it has got two parts. One is adrenal medulla, and other is the adrenal cortex. As you know that when the in the embryological state, when the baby grows or the fetus grows, the nervous sympathetic nervous system is part of the nervous system, and this is basically adrenal medulla is an extension of that primitive sympathetic nervous system. So that's why it secretes the sympathetic when there is sympathetic stimulation. So catecholamines is released. So that's why medulla is related with catecholamine release, right? And it's a small part. And the larger part is adrenal cortex, and it is made of the cells which will secrete the cortisol and adrenal androgens, and it's a part of hypothalamic pituitary adrenal axis, right? The small outer glomerulosa of the cortex secrete aldosterone under the effect of renin-angiotensin system, right? So adrenal cortex is related with two things. One is cortisol and adrenal androgens, and the other is aldosterone, right? Now, glucocorticoids, they are the secretions of this adrenal cortex, and they are major glucocorticoids. Cortisol is the major glucocorticoid in the human being, and it has got a fluctuating secretion, and which we call diurnal variation. It is highest in the morning, early morning, and it's lowest in the middle of the night. Now, the cortisol raises dramatically during stress. Whenever there is a stress in the body, the adrenal cortex gets a stimulus, and adrenal cortex secretes a large quantity of glucocorticoids, and they fight with that stress situation. And this is a protective phenomena, and that's why if there is a cortisol deficiency, uh, this will cause a problem. So whenever there is a cortisol deficiency, it may not be evident in the normal circumstances, but whenever there is a stress, so you will find the person in problem when if he has got a problem with his cortisol secretion. Now, the other part which secrete mineralocorticoids, right? Adrenal cortex, which secretes mineralocorticoids. What are mineralocorticoids? As the name evident, minerals. It's related with the minerals, and sodium and potassium are basically the two minerals which it uh, deals with. So it binds to the renal receptors. It acts at the renal level, and receptors से ये bind करता है और वहाँ से सोडियम को रिटेन करता है और पोटेशियम जो है उसको एक्सक्रीट करवाता है और प्रोटॉन पंप H आयंस जिसे हम कहते हैं या प्रोटॉन पंप प्रोटॉन्स जो होते हैं वो एक्सक्रीट होते हैं और पोटेशियम एक्सक्रीट होता है और सोडियम रिटेन होता है, राइट? सो ये चीज़ आपने याद रखनी। इसका स्टिमुलस जो होता है ना वो दैट इज बेसिकली द एंजियोटेंसिन 2। एंजियोटेंसिन 2 जो है वो एंजियोटेंसिन 1 से बनता है और एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिनोजिन से बनता है, राइट? सो एंजियोटेंसिन 2 इज produced by the activation of renin angiotensin system, right? वो renin जो है वो JG cells होते हैं, juxta glomerular cells, आपके जो किडनी के नेफ्रॉन होते हैं उसका जो ग्लोमेरुलस होता है उसके इर्द गिर्द, जक्स्टा का मतलब होता है इर्द गिर्द, सो ग्लोमेरुलस के इर्द गिर्द
इसके जो सेल्स हैं, स्पेशल सेल्स होते हैं, ये जो कैपिलरीज होती हैं ग्लोमेरुलस की, उसी के कुछ सेल्स स्पेशलाइज हो जाते हैं और वो जेजी सेल्स कहलाते हैं। और वो फिर उन पे स्टिमुलस आता है कि जी और वो स्टिमुलस क्या होता है कि लो परफ्यूजन प्रेशर है या लो सोडियम है, फिल्ट्रेशन सोडियम का लेवल लो है, परफ्यूजन प्रेशर लो है, या फिर इंक्रीज सिंपैथेटिक नर्व एक्टिविटी है। ये तीन स्टिमुलस हैं जो कि जेजी सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं और वो रेनिन बनाता है। रेनिन फिर जाके एक्शन करता है एंजियोटेंसिनोजन पे, और एंजियोटेंसिनोजन जो है वो एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट होता है और एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 में, और ये काम इसमें हमारे लंग्स में होता है, राइट। सो ये एक बेसिकली इट्स अ पिक्टोरियल फॉर्म ऑफ व्हाट एवर आई हैव टोल्ड यू। एड्रिनल ग्लैंड जो है इसका मेडुला है, ये इसका 20% ऑफ द वेट होता है, जबकि कॉर्टेक्स 80%, यानी कि बड़ा पार्ट जो है वो कॉर्टेक्स है, मेडुला छोटा सा पार्ट है। और जो कॉर्टेक्स है वो एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन्स जो कि पिट्यूटरी से निकलता है और वहाँ से आके ये कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करता है, और फिर कॉर्टेक्स जो है बेसिकली वो फिर अपनी जो चीज़ें प्रोड्यूस करनी है वो करता है। कॉर्टेक्स के 3 पार्ट्स होते हैं, GFR से याद रखें, ग्लोमेरुलोसा, starting from outside to inside, GFR. Outermost is glomerulosa, middle one is fasciculata, and the innermost is reticularis. Zona fascicular, glomerulosa, zona कहते हैं zone को, तो zona glomerulosa, zona fasciculata and zona reticularis. इसमें सबसे जो मेजर कंट्रीब्यूशन होता है वो fasciculata का होता है, 78%, right? And 15% is glomerulosa, and only the 7% is your reticularis. ये जो ग्लोमेरुलोसा है जो कि आउटर मोस्ट पार्ट है वो रिलेटेड होता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड, जो अल्टीमेटली फिर जाके एल्डोस्टेरोन बनाते हैं, राइट। जबकि जो फेसिकुलेटा एंड रेटिकुलरिस है ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, एंड्रोजन्स, ईस्ट्रोजन्स और मिनरलोकॉर्टिकॉइड। सो मिनरलोकॉर्टिकॉइड दोनों जगह प्रोड्यूस हो रहे हैं, रेटिकुलरिस में भी और ग्लोमेरुलोसा में, फेसिकुलेटा में। सो होल ऑफ द एड्रिनल कॉर्टेक्स इट प्रोड्यूसेस मिनरलोकॉर्टिकॉइड, राइट, ये याद रखना। बट मेजर कंट्रीब्यूशन इज फ्रॉम ग्लोमेरुलोसा। अब जो मेडुला है वो कैटेकोलामीन, जिसे हम एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, डोपामीन, ये चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं, ये अब सिंथेटिक में पढ़ेंगे। ठीक है, ये एड्रेनालिन जो है बेसिकली इट इज डिराइव फ्रॉम सिंपैथेटिक नर्व एंडिंग्स, राइट। नॉरएड्रेनालिन इज कन्वर्टेड टू एड्रेनालिन इन द एड्रेनल मेडुला। सो बेसिकली एड्रेनल मेडुला जो है उसमें जो है वो कन्वर्जन होती है, ऑलरेडी जो नर्व एंडिंग्स हैं उनके अंदर एपिनेफ्रिन जो है वो मौजूद होती है, लेकिन बेसिकली इसका एक्टिवेशन यहाँ पर। इसी तरह एड्रीनल एंड्रोजन्स आपके बनते हैं जिसमें टेस्टोस्टेरोन है, डाईहाइड्रोएपी एंड्रोस्टेरोन है, ये दो हैं बेसिकली। फिर एंड्रोजन्स जो हैं वो ये दोनों चीज़ें जो हैं ACTH की रिस्पॉन्स में प्रोड्यूस होते हैं, राइट। और ये जो प्रोडक्शन है ये मेल्स में प्यूबर्टी की इनिशिएशन के लिए बहुत ज़रूरी है, राइट। एड्रीनार्की जो है ना वो हम कहते हैं कि इनिशिएशन ऑफ प्यूबर्टी इज कॉल्ड एड्रीनार्की बिकॉज इट इज बिकॉज ऑफ द एड्रीनल एंड्रोजन्स, राइट। तो इसलिए इसको जैसे फीमेल में मिनार्की होती है तो मेल्स में एड्रीनार्की होती है, राइट। और फीमेल्स में ये जो है आपके जो एंड्रोजन्स हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर libido, female libido, right, out of it. So they are produced androgens ACTH की रिस्पॉन्स में होते हैं और प्यूबर्टी के इसके लिए ज़रूरी होते हैं। अच्छा, अब हम बात करेंगे एड्रीनल्स जो हैं वो एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। तो जब कोई एंडोक्राइन ग्लैंड हाइपो फंक्शनिंग में आता है तो उसको हम इनसफिशिएंसी कहते हैं, और अगर वो हाइपर फंक्शनिंग में आता है तो हम उसको कहते हैं कि देयर इज हाइपर एक्टिविटी ऑफ दैट। सो एड्रीनल इनसफिशिएंसी जो है वो किस किस वजह से हो सकती है। जैसे हमने बताया था कि पिट्यूटरी जो है वो ACTH प्रोड्यूस करती है। सो अगर कोई पिट्यूटरी का प्रॉब्लम है और ACTH कम प्रोड्यूस हो रहा है
So that would cause basically the adrenocortical insufficiency, right? So this would be secondary adrenal insufficiency, and this is the most common cause. ठीक है. और जो रेयर कॉज है उसमें ये होता है कि आपका जो एड्रीनल है उसके अंदर प्रॉब्लम होती है, राइट. हम इन दोनों में डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे कि अगर पेशेंट जो है एड्रीनल इंसफिशिएंसी वाला उसका ACTH लेवल लो है, दैट मीन्स के ही हैज गॉट सेकेंडरी एड्रीनल इंसफिशिएंसी. और अगर उसका ACTH जो है वो हाई है या इवन नॉर्मल है तो हम उसे कहते हैं प्राइमरी इंसफिशिएंसी, राइट. सो सेकेंडरी जो है उसकी मोस्ट कॉमन कॉजेज क्या होती हैं कि आप किसी पेशेंट को ग्लूकोकॉर्टिकॉइड दे रहे हैं. फॉर एग्जांपल रूमेटॉइड आर्थराइटिस वाले पेशेंट हैं, अस्थमा वाले पेशेंट्स हैं, और इसके अलावा बहुत सारी रीनल डिजीज होती हैं कुछ जो कि जिसमें आप स्टीरॉइड्स दे रहे होते हैं पेशेंट को. तो अगर उसको सडनली आप विड्रॉ कर लें तो दैट वुड कॉज secondary एड्रीनल इंसफिशिएंसी. इसी तरह हाइपोथैलेमिक और पिट्यूटरी डिजीज अगर कोई है वो भी फिर सेकेंडरी में आएगा. और अगर प्राइमरी कुछ है प्रॉब्लम एड्रीनल में तो फिर इसको हम एडिसन डिजीज कहते हैं. सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एडिसन सिंड्रोम एंड एडिसन डिजीज. सो एडिसन डिजीज जो है वो प्राइमरी डिसऑर्डर होता है इन केस ऑफ एड्रीनल प्रोडक्ट हार्मोन प्रोडक्शन. अच्छा, अब जो प्राइमरी जो है या एडिसन डिजीज है इसकी कॉजेज क्या क्या हो सकती हैं, ठीक है, एड्रीनल में क्या क्या प्रॉब्लम. सो हमेशा याद रखें ट्रॉमा, ट्यूमर, ट्यूबरकुलोसिस, ये 3 T's याद रखें हमेशा कॉजेज में. आप इनको याद रखें, ट्रॉमा, ट्यूमर, ट्यूबरकुलोसिस. सो ऑटोइम्यून ट्रॉमा हो सकता है, यानी कि और एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो गई हैं वो जाके डैमेज कर रही हैं या ट्रॉमाटाइज कर रही हैं एड्रीनल्स को, ठीक है. सो ऑटोइम्यून कॉज हो सकती है. ट्यूबरकुलोसिस हमने ये बेसिकली एक फेनोमेनिक है जो कि ट्रॉमा, ट्यूमर, ट्यूबरकुलोसिस, यानी ये इन्फेक्शंस और ट्रॉमा कैन बी इन द फॉर्म ऑफ कैंसर्स, कैन बी फॉर्म ऑफ फिजिकल ट्रॉमा और ऑटोइम्यून ट्रॉमा. सो TB, HIV, AIDS, metastatic carcinoma, a bilateral adrenal activity. These are the most important secondary causes. Rare causes जो है उसमें आपके एड्रेनल्स का लिम्फोमा हो सकता है. इसी तरह किसी पेशेंट को अगर हेमरेज हो जाए सडन एड्रेनल्स के अंदर तो फिर भी एड्रेनल्स जो हैं वो डैमेज हो जाते हैं. इसको कहते हैं वाटरहाउस फ्रेडरिक्सन सिंड्रोम. और ये किसमें होता है मोस्ट कॉमनली? ये मेनिंगोकोकल सेप्टिसीमिया. मेनिंगोकोकल में जैसे आपको पता है कि बॉडी में और भी जगह ब्लीडिंग हो जाती है, इसी तरह एड्रेनल्स के अंदर भी ब्लीडिंग होती है और वो डैमेज हो जाता है. सो दैट इज वन कॉज ऑफ एड्रेनल डिजीज, राइट. एड्रेनल के जो प्राइमरी डिजीज है उसकी बात कर रहे हैं. इसी तरह फिर कुछ डिपॉजिट्स हो जाते हैं, जैसे कि कैंसर की बात की हमने, कैंसर डिपॉजिट हो गया, या एमिलॉइड एक मटेरियल होता है जो कि एबनॉर्मली प्रोड्यूस होता है बॉडी में, या हीमोक्रोमेटोसिस में आयरन जो है ये डिपॉजिट हो जाता है जाके आपकी एड्रेनल्स में, ठीक है. फिर कॉर्टिकोस्टेरॉइड बायोसिंथेटिक एंजाइम डिफेक्ट्स. कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कि ACTH भी ठीक है, कॉर्टिसोल भी जो है वो बनेगा, लेकिन वो हार्मोन्स या वो एंजाइम्स जो हैं उनमें कुछ जेनेटिक डिफेक्ट्स होते हैं जिसकी वजह से ये बन नहीं सकता कॉर्टिसोल. तो इसी तरह कंजेनिटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया, ये एक रेयर डिजीज है जिसमें कि कंजेनिटली जो आपके एड्रीनल्स हैं वो हाइपरप्लास्टिक होते हैं एंड दे आर नॉन फंक्शनल, राइट. इसी तरह कुछ ड्रग्स हैं, फॉर एग्जांपल एड्रीनल जो हैं वो जब काम ज़्यादा करना शुरू कर दें तो क्या होगा कि ज़्यादा स्टेरॉइड प्रोड्यूस होंगे और एक बीमारी होती है जिसे हम कहते हैं कुशिंग्स डिजीज, राइट. सो इट इज़ ड्यू टू द हाइपर फंक्शनिंग ऑफ द एड्रीनल्स. सो अगर हम उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ ड्रग्स देते हैं, फॉर एग्जांपल मेटाराफोन या कीटोकोनाजोल, तो वो ड्रग अगर अपनी डोजेज से ज़्यादा हो जाए तो दे विल कॉज डिप्रेशन ऑफ द कॉर्टिकल स्टेरॉइड प्रोडक्शन. सो दैट इज अनदर कॉज ऑफ. व्हाट आर द फीचर? बेसिकली जो आपका एड्रेनल इनसफिशिएंसी है या आपकी एडिसन डिजीज है
वो दो तरह प्रेजेंट कर सकती है। वन इज द क्रॉनिक प्रेजेंटेशन, अदर इज एक्यूट प्रेजेंटेशन। क्रॉनिक में क्या होता है कि पेशेंट जो है वो उनमें एटिपिकल फीचर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट को डिप्रेशन होगा, किसी को क्रॉनिक फटीग होगा, और ये पेशेंट फिर बेसिकली जो है वो हाँ दूसरी तरफ चले जाते हैं कि ये साइकेट्रिस्ट के पास लैंड कर जाते हैं, यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन होती रहती है। एक्चुअली अंडरलाइन आपकी जो ACTH है या कॉर्टिसोल है उसकी डेफिशिएंसी हो रही होती है, जिसकी वजह से ये जा रहे थे। लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि शो करती है कि ये पेशेंट जो है इसको एड्रीनल प्रॉब्लम हो सकता है बजाय इसके कि कोई और प्रॉब्लम हो, दैट इज हाइपोनेट्रीमिया। जैसे हमने कहा था ना कि एड्रीन कॉर्टिसोल जो है वो सोडियम रिटेन करवाता है और पोटेशियम और H आइन जो है इनको रिलीज करवाता है। तो जब वो नहीं होगा कॉर्टिसोल तो हाँ सोडियम जो है वो लूज हो जाएगा, पोटेशियम और H प्लस आइन जो है वो रिटेन हो जाएंगे। सो हाइपोनेट्रीमिया विद डिप्रेशन, क्रॉनिक फटीग, वी शुड कंसिडर द पॉसिबिलिटी ऑफ एडिसन, राइट। अच्छा, फिर क्या होता है कि जब कॉर्टिसोल प्रोड्यूस नहीं हो रहा होता, तो आपको पता है कॉर्टिसोल कहाँ से प्रोड्यूस होता है? एड्रीनल ग्लैंड से। और जब कॉर्टिसोल की कमी होती है तो आपका जो पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस उनको स्टिमुलस जाता है कि जी कॉर्टिसोल कम बन रहा है, तो ज़्यादा वो ACTH प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना, ताकि जितना भी थोड़ा बहुत फंक्शन रह गया है उसका एड्रीनल्स का, उसको हम मैक्सिमम यूटिलाइज करें। तो उसमें क्या होता है कि ACTH की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है। अब आगे से एड्रीनल जो है ना वो तो रिस्पॉन्ड कर ही नहीं रहा, तो क्या होगा, ACTH जो है बेसिकली स्ट्रक्चरली इट इज़ सिमिलर टू विद MSH या मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन की तरह का ये इसका स्ट्रक्चर होता है। इसी वजह से ये जाके रीनल्स को तो कुछ भी नहीं करता, लेकिन मेलानोसाइट को ये ज़्यादा स्टिमुलेट करता है, जिसकी वजह से हाइपर पिगमेंटेशन होती है, राइट। और इसीलिए एडिसन वाले पेशेंट जो है ना उनको ज़ुबान के नीचे, उनकी पाम्स में, उनके स्कार्स में या प्रेशर एरियाज जितने भी हैं, ये एल्बोज हैं या बटक्स हैं, यहाँ पर उनको हाइपर पिगमेंटेशन, ठीक है। अगर कोई ऑटोइम्यून कॉज है एड्रिनल की, एड्रिनलाइटिस है ऑटोइम्यून, सो उन पेशेंट में विटिलाइगो होता है, राइट। अब एक्यूटली पेशेंट कब प्रेजेंट करता है? एक्यूटली पेशेंट प्रेजेंट करता है इन केसेस ऑफ स्ट्रेस। जब भी कभी कोई स्ट्रेस होगा बॉडी में, लाइक किसी की सर्जरी हुई है या कोई इन्फेक्शन है, तो देन दे वुड हैव, they need to have they need to have more cortisol, right? But unfortunately cortisol is not being produced by the adrenals. So what will happen? The body will fail. जो स्ट्रेस बॉडी लेती थी स्टीरॉयड के होते हुए वो नहीं ले सकती, उसकी वजह से सर्कुलेटरी शॉक हो जाता है, पेशेंट को सीवियर हाइपोटेंशन होती है, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपरकैलीमिया एंड हाइपोग्लाइसीमिया इवन, और हाइपर कैल्सीमिया। ये सारे फीचर्स हैं जो कि होते हैं पेशेंट को अगर एक्यूट इसकी प्रेजेंटेशन। इसी तरह इनके मसल क्रैम्प्स होंगे, वॉमिटिंग होगी, डायरिया होगा और फीवर होगा, दिस में भी प्रेजेंट। और ये बेसिकली बीमारी की वजह से भी हो सकते हैं, लेकिन एसोसिएटेड इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकते हैं। सो ये देखना है कि ये क्राइसिस होता कब है। नॉर्मली नहीं होता, पेशेंट नॉर्मल चल फिर रहा होता है, फटीग होती है, लेकिन जब भी कभी कोई सर्जरी, इन्फेक्शन या कोई भी स्ट्रेसफुल कंडीशन आती है तो ये एक्यूटली प्रेजेंट करते हैं पेशेंट। हमने इन्वेस्टिगेट कैसे करना है एक्यूट क्राइसिस में? याद रखें कि सबसे पहले पेशेंट का ब्लड सैंपल ले लें, उसको स्टोर करें फॉर कॉर्टिसोल मेजरमेंट, लेकिन टेस्ट जो है उनको डेफर कर दें और ट्रीटमेंट को पहले दें, अदरवाइज यू विल लूज योर पेशेंट। याद रखें एक्यूट क्राइसिस में यू नीड टू ट्रीट द पेशेंट फर्स्ट। क्रॉनिक इलनेस में फिर आपके पास टाइम होता है, आप उसको असेस कर सकते हैं। अब हमने बताया था कि एड्रिनल जो है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड भी प्रोड्यूस करते हैं, मिनरलोकॉर्टिकॉइड भी प्रोड्यूस करते हैं। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की जो सिक्रीशन है उसको हम कैसे असेस कर सकते हैं? रैंडम प्लाज्मा कॉर्टिसोल, उस पेशेंट का रैंडम प्लाज्मा कॉर्टिसोल लेवल ले लें, और ये हमेशा इन पेशेंट में लो होगा। या फिर अगर कोई पेशेंट है जिसको कि स्ट्रेस है और उसमें कॉर्टिसोल को बढ़ा हुआ होना चाहिए नॉर्मल से, तो वो बढ़ा हुआ नहीं होगा, राइट। इसलिए इसको कहते हैं कि दिस इज इनअप्रोप्रिएटली लो
फॉर एन एक्यूट रेंज एक्यूट इन द प्रॉपर्टी नॉर्मल सॉरी यानी होगा नॉर्मल रेंज में लेकिन फिर भी अब नॉर्मल होगा, ठीक है। यानी कि जब भी कभी स्ट्रेस होता है तो ACTH को बढ़ा हुआ होना चाहिए, लेकिन ये वाला सॉरी कॉर्टिसोल को, लेकिन ये कॉर्टिसोल नॉर्मल होगा, बढ़ा हुआ नहीं होगा, राइट। अच्छा, अब एक टेस्ट है जिसे हम कहते हैं शॉर्ट ACTH स्टिमुलेशन टेस्ट। अब ACTH जो है वो बेसिकली जब भी आप ये डिफरेंशिएट करता है कि पेशेंट को प्राइमरी डिजीज है या सेकेंडरी डिजीज है, राइट। अगर आप किसी पेशेंट को ACTH देते हैं, पेशेंट का पिट्यूटरी का मसला था या हाइपोथैलेमस का मसला था, ACTH बन नहीं रहा था, आपने उसको ACTH बाहर से दिया इंजेक्शन फॉर्म में या किसी, और एड्रीनल ने काम करना शुरू कर दिया, इसका मतलब है कि सेकेंडरी डिजीज है, ठीक है ना। लेकिन अगर आपने पेशेंट को ACTH भी दिया है और पेशेंट काम नहीं, उसका फिर भी कॉर्टिसोल लेवल रेज नहीं हुआ, इसका मतलब है कि प्राइमरी डिजीज है। अब इसमें करते क्या, इसका नाम दूसरा है टेट्राकोसेक्टाइड या फिर शॉर्ट सिनेक्टिन टेस्ट कहते हैं इसमें। और इसमें आप 250 माइक्रोग्राम ऑफ सिनेक्टिन, ACTH को सिनेक्टिन भी कहते हैं, इंट्रामस्कुलरली देते हैं। और कॉर्टिसोल को पहले आप इंजेक्शन देने से पहले यानी मेजर करते हैं 0 मिनट पे, और फिर आप इंजेक्शन देने के 30 मिनट बाद चेक करते हैं। तो ये दोनों सैंपल्स आप लेते हैं कॉर्टिसोल के। अगर कॉर्टिसोल जो है मोर देन 500 नैनोमोल्स पर लीटर एट आइदर टाइम, या स्टार्ट में ही ये इतना हो जाए या 30 मिनट के बाद इतना हो जाए, तो फिर क्या होगा, दिस विल एक्सक्लूड दी एड्रिनल इंसफिशिएंसी, राइट। तो एड्रिनल इंसफिशिएंसी है ही नहीं अगर ये 500 से ज्यादा है किसी भी टाइम बेसलाइन पे या ACTH देने से पहले, ठीक है ना। लेकिन कॉर्टिसोल लेवल इफ दे फेल टू इंक्रीज विद प्राइमरी और सेकेंडरी एड्रिनल, सो कॉर्टिसोल लेवल प्राइमरी डेफिशिएंसी होगी या सेकेंडरी डेफिशिएंसी होगी, उसमें दे विल फेल टू राइज, राइट। अब ये प्राइमरी और सेकेंडरी को हम फर्दर कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, आप ACTH को मेजर कर लें, ठीक है ना। अगर पेशेंट का ACTH जो है वो लो है, इसका मतलब है कि ऊपर से नहीं आ रहा, और अगर हाई है इसका मतलब है कि एड्रिनल की अपनी डिजीज। सो ACTH की मेजरमेंट ये। इसी तरह मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स की असेसमेंट में आपने जो है वो क्या करना है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड जैसे मैं बताया था कि सोडियम, पोटेशियम और H, ठीक है। इसमें आप हाइपोनेट्रीमिया चेक करते हैं। हाइपोनेट्रीमिया एड्रिनल, एल्डोस्टेरोन और कॉर्टिसोल दोनों की डेफिशिएंसी में होता है, याद रखें। और हाइपरकैलेमिया एल्डोस्टेरोन डेफिशिएंसी में कॉमन होता है। सो बेसिकली जो हाइपोनेट्रीमिया है वो इतना डायग्नोस्टिक नहीं है एज फार एज दिस मिनरलोकॉर्टिकॉइड डेफिशिएंसी दो। लेकिन अगर हाइपरकैलेमिया है तो फिर वो शो करेगा कि एड्रिनल में कॉर्टिसोल के साथ साथ एल्डोस्टेरोन की भी डेफिशिएंसी। अच्छा, एक चीज और होती है जिसे हम कहते हैं PRA यानी कि प्लाज्मा रेनिन एक्टिविटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एल्डोस्टेरोन के लेवल चेक कर लेते हैं। ये दो टेस्ट हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और इसके लिए ज़रूरी होता है क्योंकि जब भी आप खड़े होते हैं तो क्या होता है, आपको हाइपोटेंशन होती है, आपका ब्लड प्रेशर लो होता है। जब ब्लड प्रेशर लो होगा तो रीनल परफ्यूजन भी कम होगी, रीनल परफ्यूजन कम होगी तो ऑटोमेटिकली स्टिमुलस जाएगा जेजी सेल्स को, और रेनिन सिक्रीट होगा, फिर एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2, तो रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि जब भी आप एल्डोस्टेरोन को चेक करें या प्लाज्मा रेनिन एक्टिविटी, तो पेशेंट को 1 घंटे पहले या एटलीस्ट हाफ एन आवर उसको लिटा दें, ठीक है, और फिर उसका सैंपल लें। सो दैट इज व्हाई इट इज टेकन इन दी सुपाइन पोजीशन। सो मिनरलोकॉर्टिकॉइड डेफिशिएंसी में क्या होगा कि प्लाज्मा रेनिन एक्टिविटी जो है वो हाई होगी लेकिन लो या नॉर्मल एल्डोस्टेरोन, ठीक है ना। दिस इज एविडेंट कि जब एल्डोस्टेरोन लो होगा तो जो रेनिन है वो बढ़ा हुआ होगा। अब आपने कॉज देखनी है जो हमने बताई थी सारी कॉजेज, उसके लिए आपने एड्रिनल एंटीबॉडीज चेक कर लेनी है, और ऑटोइम्यून एड्रिनल फेलियर अगर है तो उसमें एड्रिनल ऑटो एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट। अगर एड्रिनल एंटीबॉडीज नेगेटिव हैं तो फिर आप CT और MRI करवाएं, और ये फिर शो कर सकता है कोई मैलिग्नेंसी है, कोई सेकेंडरीज है, लिम्फोमा है, ठीक है।
एब्डोमिनल एक्सरे जो है वो एड्रिनल कैल्सिफिकेशन शो करता है। सो जहाँ पर भी टीबी, बेसिकली आपको पता है टीबी इन्फेक्शन जो है उसमें ग्रेनुलोमास बनते हैं और अल्टीमेटली दे वुड बी अल्टीमेटली दोज ग्रेनुलोमास दे वुड बी कैल्सिफाइड, राइट। सो एब्डोमिनल एक्सरे जब आप करते हैं तो आपको उसमें एड्रिनल वाले एरिया में कैल्सिफिकेशन मिलती है, कुछ शो दैट पेशेंट माइट हैव एड्रिनल ट्यूबरकुलोसिस। HIV टेस्ट भी आपको करना चाहिए। अब मैनेजमेंट कैसे करनी है, हमेशा याद रखें कि इसमें दो चीज़ें हैं, वन इज़ योर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिप्लेसमेंट एंड अदर इज़ योर मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिप्लेसमेंट। सो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिप्लेसमेंट आपने हाइड्रोकॉर्टिसोन जो है या कॉर्टिसोल जो है, इट इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस। कॉर्टिसोन इसे हम कहते हैं, हाइड्रोकॉर्टिसोन या कॉर्टिसोल। और नॉन क्रिटिकली इल पेशेंट में 10 मिलीग्राम इन द मॉर्निंग एंड 5 मिलीग्राम, ये 10 लिखा हुआ है, 0 इसके पीछे छुप गया, तो 10 मिलीग्राम इन द मॉर्निंग और 5 मिलीग्राम एट 1500 आवर, यानी कि शाम के वक्त आप उसको 5 मिलीग्राम देते हैं। और ये जो है बेसिकली ये डोज अगर आप दे रहे होंगे तो पेशेंट जो है वो उसको एक्सेसिव यानी कि उसकी डोज नहीं होगी, और ये फिर पेशेंट को उसकी हेल्प करेगा इन केसेस, इन द नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस, उसकी नॉर्मल जो बेसलाइन एक्टिविटी है बॉडी की उसको करने में हेल्प करेगा। लेकिन ये याद रखें कि डोज इतनी होनी चाहिए जो कि ओवर डोज ना हो, यानी कि कुशिंग-आइड इफेक्ट्स ना करे। और कुशिंग-आइड इफेक्ट में कैसे पता चलेगा आपको, पेशेंट को वेट गेन शुरू हो जाएगा, राइट। और अगर पेशेंट की डोज कम है यानी जितनी चाहिए हो उससे, तो फिर उसको लेथार्जी भी रहेगी, हाइपर पिगमेंटेशन भी रहेगी, सो इनएडिक्वेट डोज। तो आपको ख्याल रखना है कि ना तो डोज इनएडिक्वेट होनी चाहिए और ना ही एक्सेस होनी चाहिए। हमेशा याद रखें कि पेशेंट ऑन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड replacement therapy, they should be advised to double the dose of hydrocortisone during intercurrent infection. उसका गला खराब हो गया या कोई और उसको स्ट्रेस है, उसमें आप उसको बता दें कि आप ये डोज जो है सुबह वाली 10 की बजाय 20 कर दें और शाम वाली 5 की बजाय 10 कर दें, डबल द डोज। इसी तरह जब आप ऑपरेशन, किसी कोई सर्जरी है तो उसमें पेरी ऑपरेटिवली यानी कि सर्जरी के दौरान आपने उसको 100 मिलीग्राम 4 टाइम्स डेली हाइड्रोकॉर्टिसोन जो है वो देना है, ठीक है ना। और उसको फिर अगर वॉमिटिंग हो रही है तो फिर भी आपने उसको इंजेक्टेबल या आईवी हाइड्रोकॉर्टिसोन देना, याद रखें। इसी तरह पेशेंट जो है इनको एक कार्ड इनके गले में लटका होना चाहिए और जो कि ये बताए कि इस बंदे को एडिसन डिजीज़ है या डाउन सिंड्रोम है, ताकि अगर कोई बंदा उसको अनकॉन्शियस कंडीशन में पाए तो वो कार्ड देके उसको पता चल जाएगा कि इसको तो कॉर्टिसोल डेफिशिएंसी है, और फौरन उसको स्टीरॉयड का इंजेक्शन लगा दें, ठीक है ना। तो इसलिए ज़रूरी है कि ब्रेसलेट जो है वो बड़ा ज़रूरी है। अब मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स को कैसे आपने रिप्लेस करना है, उसके लिए फ्लूड्रोकॉर्टिसोन जो है ये एक ड्रग है जो कि आप लेते हैं 0.05 to 0.2 मिलीग्राम डेली, वेरी माइनर क्वांटिटीज आर रिक्वायर्ड। और इसकी जो एडिक्वेसी है वो आप प्लाज्मा, पेशेंट का ब्लड प्रेशर से पता चलेगा, प्लाज्मा इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम, पोटेशियम और प्लाज्मा रेनिन एक्टिविटी, ये सारी चीज़ें जो हैं वो शो करेंगी कि जी आप एडिक्वेट डोज दे रहे हैं या नहीं दे रहे। अब अगर एड्रिनल क्राइसिस हो गया है, एड्रिनल क्राइसिस के पेशेंट जो है वो उसको पता ही नहीं था कि उसको एड्रिनल इंसफिशिएंसी या स्टीरॉयड ले ही नहीं रहा और एकदम से वो क्राइसिस में पता चला, या फिर पेशेंट ने जब कभी इन्फेक्शन या स्ट्रेस हुआ है तो डोज अपना डबल नहीं किया, उसकी वजह से क्या होगा, he will end up in adrenal crisis. It's a medical emergency and it required IV hydrocortisone succinate 100 मिलीग्राम IV आपने देना होता है। इसके अलावा आपने उसको फ्रूट्स भी देने हैं, नॉर्मल सलाइन देना है क्योंकि नॉर्मल सलाइन हाइपोनेट्रीमिया है, आपने उसको नॉर्मल सलाइन भी देना है ताकि उसका ब्लड प्रेशर ऊपर आए, और इसके अलावा 10% डेक्सट्रोज भी देना है। ये 3 चीज़ें ज़रूरी हैं, IV हाइड्रोकॉर्टिसोन, नॉर्मल सलाइन और 10% डेक्सट्रोज। यानी कि हमने कहा था कि हाइपोग्लाइसीमिया भी होता है इन पेशेंट में, ठीक है। इसलिए ये ज़रूरी है कि ये तीनों चीज़ें दी जाएं पेशेंट।
और जब तक पेशेंट जाग नहीं जाता, अनकॉन्शियस नहीं हो जाता, आप इसको आईवी देते रहें। और फिर अगर उसको कोई इन्फेक्शन है, कोई स्ट्रेस है, या उसने अपनी डोज मिस की हुई है, तो उस प्रॉब्लम को आपने एड्रेस करना है। ठीक है जी। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट टॉपिक फॉर टुडे इज दी कोन सिंड्रोम, राइट। अब बेसिकली हमने हाइपो एल्डोस्टेरोनिज्म की बात की थी। सो देयर इज वन कंडीशन which would cause hyper aldosteronism, right? So इसको हम कोन सिंड्रोम कहते हैं। और अगर एड्रिनल कॉर्टेक्स हाइपर फंक्शनिंग कर रहा है तो उसमें दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो ज़्यादा वो स्टीरॉइड प्रोड्यूस कर रहा होगा, इसमें कुशिंग्स डिजीज हो जाती है, या फिर वो मिनरलोकॉर्टिकॉइड बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये रेयरली ऐसे होता है, ठीक है ना। तो अगर ये हो तो इसको हम कोन सिंड्रोम कहते हैं। Or it occurs when adrenals produce too much of aldosterone, right? And this problem is also known as primary hyperaldosteronism, यानी कि एल्डोस्टेरोन जो है वो सेकेंडरीली भी ज़्यादा हो जाता है। अगर जैसे हमने बताया था कि किसी को हाइपरटेंशन हुई, कोई और कुछ हुआ, रेनिन, एंजियोटेंसिन, एंजियोटेंसिन 1, एंजियोटेंसिन 2 आके बेसिकली एड्रीनल से एल्डोस्टेरोन को सिक्रीट करवाता है। सो दैट वुड बी secondary hyperaldosteronism. But Cohen syndrome is basically primary hyperaldosteronism, यानी कि जो cause है वो it lies inside the adrenal cortex. अब इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं कि मोस्ट कॉमनली जो पेशेंट्स होते हैं दे हैव दिस, इनका आपने एड्रिनल इंसफिशिएंसी के फीचर्स आपको याद हो तो आप उन सबको रिवर्स कर दें तो ये कोन्स के बन जाएंगे। इसमें क्या होगा, उसमें हाइपोटेंशन थी, तो इसमें हाइपर टेंशन होगी, ठीक है ना। पेशेंट का ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा, और ब्लड टेस्ट जो हैं वो बताएंगे कि पेशेंट जो है उसको या कोन सिंड्रोम है या कोई और चीज़ है। यानी आप उसका सोडियम का चेक करेंगे, बढ़ा हुआ होगा, पोटेशियम लो होगा, ठीक है ना जी। तो ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है। तो ये कोन सिंड्रोम, यूजुअली द ट्रीटमेंट इज गिवन फॉर द हाई ब्लड प्रेशर। आप उसको हाइपरटेंशन को कंट्रोल करते हैं, और जो दो ड्रग्स मोस्ट कॉमनली यूज होती हैं वो होती हैं जो कि जो एंजियोटेंसिन रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम पे एक्ट करती हैं। और वो कौन कौन सी हैं? वन इज एस इनहिबिटर्स, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स, या फिर एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, राइट। ये दो ड्रग्स हैं जो कि इस स्पेसिफिक डिजीज में आप पेशेंट के ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए देते हैं, एआरबीज या फिर एसीज, राइट। सो इलेक्ट्रोलाइट जब एबनॉर्मल होते हैं, हमने कहा था सोडियम जो है वो ज़्यादा हो गया, पोटेशियम कम हो गया, सो ये भी हो जाता है। इसमें क्या होगा कि अगर तो लैक ऑफ मसल स्ट्रेंथ, हाइपोकैलीमिया जो है, हाइपरकैलीमिया हो जाएगा, फ्रीक्वेंट वाइडिंग, उसको यूरिन बहुत ज़्यादा है, सोडियम जो है उसकी बॉडी में ज़्यादा होगा, तो फिर बॉडी जो है वो सोडियम से निजात हासिल करना चाहेगी, तो वो मिक्सचरेशन उसको ज़्यादा होगा। नाइट टाइम वाइडिंग भी होती है, यानी कि नॉक्चर्नल, जिसे हम नॉक्चूरिया भी कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा हेडेक्स होते हैं, थर्स्ट, यानी जब यूरिन ज़्यादा आएगा तो बॉडी का वाटर लूज होगा तो उसकी थर्स्ट भी ज़्यादा हो जाएगी। सो बेसिकली पैरास्थीजिया उसको होते हैं, पिन नीडल्स फीलिंग जिसे हम कहते हैं, उसको विजुअल डिस्टर्बेंसेस होंगी क्योंकि उसकी बॉडी की जो फ्लूइड है उनकी ऑस्मोलैलिटी जो है वो चेंज हो जाएगी, राइट। अच्छा, अब इसे कहते हैं पीरियोडिक पैरालिसिस। हाइपोकैलीमिया, हमने कहा था कि ये जो है हाइपोकैलीमिया कॉज कर देता है, राइट। सो दैट वुड कॉज बेसिकली हाइपोकैलेमिक पीरियोडिक पैरालिसिस, राइट। एंड इसकी जो सेवेरिटी है वो डिपेंड करती है कि इसके लेवल्स क्या हैं सोडियम या पोटेशियम। अब नाउ द कॉजेज ऑफ दिस कोन सिंड्रोम इज अ रेयर कंडीशन, लेकिन जो मोस्ट कॉमनली इट इज कंजेनिटल प्रॉब्लम, हेरिडिटरी प्रॉब्लम रादर। कोन सिंड्रोम में जो बेसिकली एंजाइम्स होते हैं प्रोडक्शन ऑफ एल्डोस्टेरोन के लिए, उनमें कंजेनिटल डिफेक्ट्स होते हैं, ठीक है ना, और इसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकता है। अच्छा, फिर कुछ ट्यूमर्स हैं एड्रिनल ग्लैंड के, जैसे कि बिनाइन कॉर्टिकल एडिनोमा है, ये भी कॉज कर सकते हैं।
इसी तरह बायलैटरल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया अगर है तो ये भी कौन सिंड्रोम प्रोड्यूस कर सकता है, राइट? Sometimes excess aldosterone is caused by another health problem. So इसको हम क्या कहेंगे? सेकेंडरी हाइपर कौन सिंड्रोम की जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस है उसमें सेकेंडरी कॉज, फॉर एग्जांपल एक्सेस ऑफ द फ्लूइड लॉस, वॉमिटिंग, डायरिया, बर्न, ये सारी की सारी चीजें भी हाइपर एल्डोस्टेरोन। इसी तरह रीनल आर्टरी नैरोइंग यानी जिसे हम कहते हैं रीनल आर्टरी स्टीनोसिस जो है उसकी वजह से भी किडनी के अंदर ब्लड प्रॉपर नहीं जाएगा, हाइपोपरफ्यूजन होगी। और हाइपोपरफ्यूजन जो है आपको पता है कि वो सारा एक साइकिल स्टार्ट करवा देती है जिसको कि हम जो अल्टीमेटली जाके एंडोस्टेरोन टू एंडोस्टेरोन प्रोडक्शन करता है। सो रीनल आर्टरी स्टीनोसिस। इसी तरह हार्ट फेलियर वाले जो पेशेंट है उनमें भी क्योंकि रीनल परफ्यूजन कॉम्प्रोमाइज हो जाती है सो उनमें भी ये प्रॉब्लम हो सकता है, राइट? सो दीज आर द सेकेंडरी कॉजेज। इतना शॉक है, लिवर डिजीज है, प्रेगनेंसी है, किडनी के ट्यूमर्स हैं कुछ जो कि हाइपरएल्डोस्टेरोनिज्म कॉज करते हैं। दीज आर द सेकेंडरी कॉजेज, राइट? अब इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है? अब आपने ये देख लिया है कि एक तो ये है कि आपने हाइपरटेंशन को ट्रीट करना है। तो कौन सिंड्रोम की जो टाइप है वो कौन सी है, तो आप ने पेशेंट को उस केस मुताबिक ट्रीट करना है। अगर प्राइमरी है, ठीक है ना जी, और वो ट्यूमर की वजह से है तो फिर आपने सर्जरी की तरफ उसको लेके जाना है। और आपने उसमें क्या करना है कि उसका आपने एक एड्रिनल ग्लैंड ही रिमूव करना है, इसे कहते हैं यूनिलैटरल एड्रिनलेक्टमी, ठीक है जी। सो जो ट्यूमर है उस वाले ट्यूमर जहाँ पर ट्यूमर है उस वाले एड्रिनल्स को आपने रिमूव कर देना है और दूसरा एड्रिनल जो है वो काम करता रहेगा, बॉडी अकाउंट से ही चलता रहेगा। अच्छा, राइट। एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं एड्रिनल वीनस सैंपलिंग, ठीक। आपको पता नहीं है कि कौन सा वाला एड्रिनल जो है वो उसमें प्रॉब्लम है, राइट? तो क्या करते हैं कि एड्रिनल जो वेन्स हैं उनको आप कैनलाइज करते हैं, उसमें कैनुला डालते हैं और दोनों से सैंपल लेते हैं। और जब आप सैंपल लेते हैं तो एक तरफ जो है वो एल्डोस्टेरोन ज़्यादा होता है और दूसरी तरफ कम होता है, तो हमें पता चलता है जिस तरफ ज़्यादा है वहाँ प्रॉब्लम है। तो इसे कहते हैं एड्रिनल वीनस सैंपलिंग। दिस इज मैंडेटरी बिफोर द एड्रिनल ग्लैंड विद द मास इज रिमूव्ड। जब आपको पता चले कि कोई मैस है तो ये वाला जो एड्रिनल वीनस सैंपलिंग है ये बहुत ज़रूरी टेस्ट है। ये करके तो फिर आपने सर्जरी करनी है, क्योंकि गलती से अगर आपने नॉर्मल वाला एड्रिनल निकाल दिया तो क्या होगा कि नॉर्मल वाला एड्रिनल निकल जाएगा, जो ट्यूमर वाला है वो ऑलरेडी एबनॉर्मल है, सो पेशेंट वुड गो इनटू क्राइसिस। सो लेप्रोस्कोपिकली ये सर्जरी होती है। अच्छा, इसी तरह बायलैटरल हाइपरप्लेजिया जो है वो आप डायूरेटिक्स जिन्हें हम वाटर पिल्स भी कहते हैं उनके जरिए आप करते हैं। अब आपने पता है कि सोडियम जो है वो ज़्यादा होता है बॉडी के अंदर, ठीक है ना। सो आप डायूरेटिक्स देते हैं और लूप डायूरेटिक जो हैं वो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं क्योंकि वो सोडियम को लूज करवाते हैं, ठीक है ना। तीन ड्रग्स हैं, डायूरेटिक्स हैं, एस इनहिबिटर्स हैं और ARB, राइट? सो दीज आर दी ड्रग्स व्हिच आर मोस्ट कॉमन। सेकेंडरी जो है वो जो भी उसकी कॉज है तो वो आप रिमूव करें। अच्छा, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो एड्रिनल सर्जरी होती है इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स सर्जरी। बहुत छोटा सा एड्रिनल ग्लैंड है, उसके अंदर से भी आपने ट्यूमर वाला को ढूंढना है, फिर उसको निकालना है। इट्स अ वेरी वेरी complicated surgery and you should choose a surgeon who has got a significant experience with the surgery in the area around the kidney and adrenal gland, right? So you should see multiple, at least 2-3 doctors, surgeons, and you should choose the one best out of them, right? So that was all about the lecture. And if you have any question, so I would just ask them to open your mics so you can ask me any questions, right?